बेस्ड ऑन गिट, ठीक है। प्लीज चेक द चैट बॉक्स। ऑल्दो भी क्लासरूम पे अपलोड नहीं किया है मैंने असाइनमेंट, बट चैट बॉक्स पे यू विल बी एबल टू सी द असाइनमेंट, ठीक है। ये असाइनमेंट अभी एंड ऑफ द फर्स्ट सेशन यू विल बी एबल टू स्टार्ट विद, ठीक है। सो प्लीज फाइंड द असाइनमेंट ऑन द चैट बॉक्स। यस, राजभोग, आर यू कनेक्टेड? राजभोग, सौरभ। आई एम सेंडिंग वन अनदर लिस्ट, ठीक है। दिस इज द लिस्ट जिन बच्चों का आईओएसओ पे रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इनमें से अभी भी still 4 students are there, those who haven't registered, ठीक है। I think Sai Nishant is there, then Raj Bhog is there, then Anand is there, Anand Kumar Yadav, and I think Mansi, second one Mansi is there, जिनका registration नहीं हुआ है। Please check that list as well. Kindly circulate that list on the group कि भाई प्लीज दोज हु हैवंट रजिस्टर्ड ऑन द आईएसओ प्लीज रजिस्टर इट। इस वजह से क्लास का हम डेटा ऑथेंटिकेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी। प्लीज अपलोड दिस मैसेज ऑन द ग्रुप, ठीक है, along with the list that is being attached in the chat box. All right, so दो चीजें आपके chat box में I've sent, one is the assignment and the second one is the list of those students जिन्होंने register कर लिया है, ठीक है। and इसमें I think 4 students are such that जिनका registration नहीं हुआ है, so please verify किनका registration नहीं हुआ है, and those who are still not registered, please register yourself, ठीक है। चलिए, so let's come to the Git and GitHub part. Please log into the GitHub account. All of you need to log in to your GitHub account. ठीक है, GitHub account पे बेटा log in कर लो. Please log into your GitHub account. Assignment I've already sent to you. ठीक है. In the previous session we started कि what is the utility of Git and GitHub. जो GitHub है या जो Git है, these are the tools of version control system. उसमें से भी ये आपके distributed version control system का एक कॉन्फ़िगरेशन टाइप है। All right, this is one of the types of the distributed version control system. GitHub क्या है? We had seen that GitHub is a cloud hosted platform जहां पे हमारा remote server is there. What is Git? Git is a software, a utility tool that is command line based, bash driven, ठीक है, commands driven, all right, जो कि local में you need in order to interact or sync with your remote, all right. यहाँ पे एक GitHub desktop आता है when you open something like this ना, तो ये GitHub desktop या GUI भी आता है। ये जो है दिस इज बेसिकली GitHub desktop जो है, दिस इज द GUI वर्जन ऑफ द लोकल यूटिलिटी टूल। इस तरीके से देखो यहाँ पे GitHub desktop आ रहा है ना। GitHub desktop वैसे यूज नहीं होता है क्योंकि लिनक्स सिस्टम पे जनरली व्हेन वी आर वर्किंग वी डोंट यूज दीज GUI एप्लीकेशंस, ठीक है। इन द ऑर्गेनाइजेशंस एंड द एंटरप्राइजेस आल्सो गिट पे काम होता है। तो GitHub desktop जो है दिस इज नॉट इन योर करिकुलम, नॉट द थिंग दैट वी हैव टू इनफैक्ट कवर ऑल्सो, कि इसका कोई ज्यादा यूज नहीं है। गिट का रेप्लिका है जो काम आप कमांड से कर रहे हो, उसकी जगह यू आर हैविंग GUI पैनल फॉर दैट, ठीक है। यूजर इंटरफेस बना हुआ, बटन दबाओ और वो एक पर्टिकुलर यूटिलिटी को कंप्लीट करो, बट वी वुड बी वर्किंग विद गिट, ठीक है। एंड
we understood the concept ki Git and GitHub are used for project management, team management, as a version control to maintain the entire history of your project. ठीक है, रिविजन हिस्ट्री को मैनेज करता है. ठीक है, एंड व्हेन वी टॉक ऑफ गिटहब, डेफिनेटली गिटहब पे you can store, you can manage, you can access repositories. ठीक है, गिटहब पे you can store, you can manage, you can access repositories, and you are getting the entire code from the scratch. इसमें ना आप पूरा प्रोजेक्ट जो है, not the image, you keep the entire project, the code snippets, जो भी उस रिपोजिटरी में components हैं, वो सारी चीजें you keep in that particular repository. ठीक है, so entire code, entire text files, manuals, everything, whatever there is integrated in the folder itself, that you keep inside the repository. project folder में जो भी है ना, वो repository का पार्ट है, तो पूरा कोड आपको स्क्रैच से मिल जाता है. तो एक प्रोजेक्ट हेल्प भी इसका एक यूटिलिटी है. कंट्रीब्यूटर कोलैबोरेटर्स तो हैं ही है, बाकी प्रोजेक्ट हेल्प पे के लिए भी यू कैन ऑलवेज रेफर टू गिट. गिट इज लाइक अ सोशल नेटवर्किंग पेज फॉर द डेवलपर्स. ऑलराइट, देन whatever people they are being connected, definitely in their local system, laptops or desktop, उनके पास git tool already installed होगा. ठीक है, ताकि जब वो कुछ चेंजेस करें, सपोज दे आर अपडेटिंग सम कोड्स ओवर हियर, वो कोड यहाँ पे नहीं है, whatever changes they will be updating, ठीक है, that will be published on the GitHub with the help of the push operation. ओके, एंड अगर गिटहब पे कुछ चेंज आया है, सपोज someone has updated a change on the GitHub, ठीक है, एंड GitHub पे कोई चेंज आया है, so this change will be updated in the local with the help of the pull operation, push and pull operation. ये पुश और पुल ऑपरेशन जो है, ये आपका चेंजेस अपडेट करने के लिए है. ओके, जो भी चेंजेस हुए हैं उस इंस्टेंस पे, रिमोट पे हुए हैं चाहे लोकल पे हुए हैं, है ना, रिमोट एंड लोकल मस्ट बी सिंक्ड. द रिमोट एंड लोकल मस्ट बी सिंक्ड. रिमोट को we generally refer to as origin. All right, and also we learnt about the operation called clone. What is the difference between clone and pull? Why do we recommend pull instead of clone whenever the changes are done? क्लोन एक पूरा नया रिपोजिटरी लोकली क्रिएट करता है, राइट? पुल विल जस्ट अपडेट. Yeah, correct, absolutely correct. See, when you are using the clone operation, so clone operation will create a new folder in your local. मतलब suppose someone has done the changes on the GitHub, कुछ changes करे आपने GitHub में, आप उसको clone कर रहे हो, ठीक है, git clone लगा के clone कर रहे हो, तो every change के लिए you would be creating multiple copies for every change, multiple copies. So it's recommended कि जब आप first time when you join the organization or when you join the project, है ना, first time तो आपको clone ही करना पड़ेगा. Ongoing कोई project है, you are joined in the project as a team member, तो पहली बार तो आपको clone करना पड़ेगा, तब जाके वो project आपके laptop पे आएगा. After that, whenever the changes are done on the remote, for every change we have to use the pull operation. Why? Because
pull will update only the changes which are done on the remote rather than कि entire copy create करे. Only the changes will be updated with the help of the pull operation, because both the operations they are from the remote towards the local, but that is the difference. इस वजह से clone आप सिर्फ पहली बार initially use करते हो, उसके बाद whenever the changes are done on the remote, every time you use the pull operation in order to update the changes in your local systems. ठीक है, यहाँ पे एक fetch भी आएगा. अभी मैंने क्या बताया कि pull is actually equivalent to, मैं एक लाइन लिखती हूँ, this was the last time's objective. Pull is actually equivalent to fetch plus merge. Now this is the word that we have to complete today in the form of the operation, merge operation. जो pull है ना, that is equivalent to fetch the changes, and merge, update those changes onto your local. So we can even write an alternative operation for pull, that is fetch plus merge. ठीक है, and we'll see कि merge खाली क्या करेगा. What does merge actually will be responsible for? Clone, push, pull, merge, fetch. These are some of the basic operations. Now, we learned that default branch is always main. Default branch is always main. आपने last time when we started on the main. ठीक है, whatever changes we were doing, चाहे local कर रहे हैं, चाहे we are doing on the remote, we understood कि for every change मतलब creation of a file, deletion of a file, editing या modifying a file, कुछ लिख रहे हो है ना, you are inserting something inside a file or you are deleting some of the content, every change will be saved with the help of the commit operation. Every commit will have a commit ID, will have the commit message. All right. Similarly, on the Git, we learned कि whenever we want to save a file on the Git local repository. Now, I told you कि there are two things. देखो, एक तो होता है local folder, and the other one is Git local. Okay. Now, ये जो folders बने हुए हैं ना, ये local folders हैं. But if I go inside this folder जो मैंने clone किया था, this is a Git local folder. इसकी जो files है ना, they are in the track of Gits. These files are actually handled with the Git operations. इस folder में we have the hidden attribute of Git. Git के attributes are present. तभी आप इस local folder पे Git के operations use कर सकते हो. You cannot use Git operation on these folders. ये जो local folders है, which are not in the track of Git, which are not having hidden attributes of Git. जिसमें Git के attributes है, उसमें तो Git add, Git commit use करोगे. जिसमें Git के attributes ही नहीं है, वहां पे you cannot use the Git operations. ठीक है, so please make a note कि जो local folder है ना, these are not having Git attributes. इसको आप GitHub पे थोड़े डाल दोगे. Yeah, you cannot use Git add commit. But if you initialize it as a Git local folder, if the folder is having hidden attributes of Git, then only that particular folder will be committed. मतलब उस पर commit operation लगेंगे, मतलब सारे जितने भी Git के operations है, they will be used accordingly. All right.
Also, whenever you have to start the Git, please remember that you have to go inside that folder and you have to open the Git bash from there itself. कहीं और लोकेशन से करोगे तो यू हैव टू गो टू दैट लोकेशन. हाउ? विद द हेल्प ऑफ cd कमांड. ठीक है. cd स्टैंड्स फॉर चेंज डायरेक्टरी. जो भी आपका लेट्स सपोज फोल्डर है, एक प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर यू हैव नेक्स्ट फोल्डर, cd यू विल बी यूजिंग. ठीक है. यू हैव टू बी ऑन दैट प्रोजेक्ट लोकेशन. इफ यू वांट टू save the particular commits or whatever changes on that specific repository you are doing. Alright, ये जो ब्रांच का नाम है ये क्या है? origin main, मतलब origin पे जो मेन ब्रांच पड़ा हुआ है. और यहाँ पे जो ब्रांच we are able to see, this is what? This is the branch of the local. पाथ क्या है इसका? pwd लगा के देख लेते हैं. सी में, मतलब मेरे सिस्टम पे सी में, यूजर्स में, सीधा डेस्कटॉप में, डॉक्यूमेंट्स के इनसाइड, गिट प्रोजेक्ट्स के इनसाइड आई हैव वन प्रोजेक्ट कॉल्ड प्रोजेक्ट 1. ठीक है. अब इसके आगे देखो, प्रोजेक्ट 1 के आगे लिखा हुआ है मेन ब्रांच. सपोज मुझे गिट प्रोजेक्ट्स पे जाना है तो व्हाट कमांड आई विल यूज? चेंज डायरेक्टरी, cd चेंज डायरेक्टरी डॉट डॉट. अगर एक सब स्टेप पीछे जाते हो ना, जैसे यहाँ से प्रोजेक्ट 1 से एक स्टेप पीछे जाते हो, cd स्पेस डॉट डॉट, तो यहाँ पे आ गए. अब ये देखो, ये जो फोल्डर है ना, ये गिट के ट्रैक पे इंस्टेंशिएटेड नहीं है. इसके इनसाइड वाला फोल्डर इज इंस्टेंशिएटेड. तो मैं क्या करूंगी? आई विल चेंज द पाथ, cd प्रोजेक्ट 1. अब देखो, I am inside project 1 and I am working on the branch main. ठीक है. I am working on the main branch. All right. इसका लोकेशन चेक करो. All of you please open the git bash. ठीक है. उसी लोकेशन से ओपन करिए. ये मेन ब्रांचेस जो है इसकी चेक करोगे आप. ये लोकल ब्रांच है. दिस इज द लोकल ब्रांच. और रिमोट ओरिजिन पे क्या है? रिमोट ब्रांच. ब्रांचेस दो तरीके की होती हैं. वन इज लोकल ब्रांच, अदर वन इज रिमोट ब्रांच. जब मैंने गिट ब्रांच कमांड लिखा तो मुझे एक मेन करके दिखाई दिया इसका आंसर. उसके आगे भी स्टार लगा हुआ है. स्टार मतलब एक्टिव ब्रांच. तो गिट ब्रांच इज द कमांड दैट इज यूज्ड टू लिस्ट द ब्रांचेस इन द लोकल. क्लियर? अब आपका क्या वर्क है? टेक 5 मिनट्स. ये जो पाथ है, एक बार तो बेटा ये पाथ एक बार दोबारा से चेक करो. पाथ एक बार चेंज भी करके देखो. लोकल ब्रांचेस जो है एक बार चेक करके देखो. एक तो ये करोगे. दूसरा क्या है कि जस्ट वेट, स्क्रीनशॉट लेना था. Screenshot that I'm sending. Just wait, let me complete. फिर I'll give you time to complete your side. All right, git branch command जो है, what is the purpose of the git branch command? Git branch command is used to list the branches on the local. git branch command से अगर हम देखना चाहते हैं हमारे लोकल में कितनी ब्रांचेस हैं, टू लिस्ट द branches in local we have a command git branch. तो इसमें देखो git branch जब टाइप किया था तो आंसर वाज ये जो मेन ब्रांच था, मतलब हमें एक ही ब्रांच हमारा लोकल में पड़ा हुआ है. and the name of the branch is main and this is the active branch. right? ठीक है.
Now you take 5 minutes, कंप्लीट करोगे एंड इन केस ऑफ एनी डाउट यू विल आस्क। स्क्रीनशॉट मैंने भेज दिया है आपके चैट बॉक्स पे, ठीक है, स्क्रीनशॉट इज ऑलरेडी गिवन टू यू, स्क्रीन शेयर भी है इस पे मेरा, ठीक है। सो प्लीज कंप्लीट इट, टेक 5 मिनट्स, आई विल गिव यू 5 मिनट्स टू कंप्लीट इट। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन आस्क द डाउट प्रॉम्प्टली, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट दिया हुआ है चैट बॉक्स में and also my screen is shared. So please verify the paths, verify the branches in your local. Okay, completed.
यस क्लियर इट इज। इसमें बेटा कोई डाउट है तो आप पूछ लो। इफ यू हैव एनी डाउट विद रिस्पेक्ट टू दिस प्लीज आस्क। आनंद, आनंद कुमार यादव। यस मैम। बेटा आपने आईएसओ पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ क्या आनंद कुमार यादव? मैम कल ही रजिस्टर किया मैम। कल कर लिया रजिस्टर, हो गया है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा ठीक है, ओके फाइन। राजभोग, Rajbhog, you have also not registered. Please register yourself. Okay. All right. Let's move ahead then. The things are clear. Let's move. इससे आगे. Now, please you go to your GitHub portal. All right. यहाँ पे please check the number of branches. ये जो है ना, these are remote branches. Okay. How many branches we are having? We are having only one branch. All right. This is the branch on the remote. Remote के branch है ये. तो I'll write one point over here. Branches हैं are local branches जो आपके local में merge हुई हैं या create हुई हैं, and one is the remote branches merged or created on the remote. All right. Now let's understand the purpose of branches before we start with branches. ये हमें समझ आ गया कि लोकल पे ब्रांच बनानी है तो गिट से बनानी पड़ेगी या मर्ज करवाना पड़ेगा। रिमोट पे ब्रांच बनानी है तो यू हैव टू गो टू गिटहब। All right. Now what is the purpose of branches? देखो branches का purpose है work segregation. Suppose I just have one repository, ठीक है, और please remember main will be containing the driver code. Main में ना main code रहेगा, driver code of your project will be there, ठीक है. One purpose is work segregation. Suppose on the main I just want to keep the code file, and on the another branch, let's suppose B1, I want to keep manuals, ठीक है. On B2 branch I want to keep the historical data. On the B2 branch I would be using B3 branch for test and training part of the model, ठीक है. So this is basically used for work segregation, क्योंकि हर चीज we cannot keep inside the main folder. तो पहला यूज जो है ब्रांचेस बनाने का वो है वर्क सेग्रीगेशन, है वो उसी फोल्डर का पार्ट. दिस इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ द सेम रिपोजिटरी वी आर टॉकिंग अबाउट. ओके, बट द वर्क सेग्रीगेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ ब्रांचेस. आप अलग अलग काम अलग अलग ब्रांचेस पे रख सकते हो. मेन में you will be having the main code itself, the main driver code itself. First purpose. Then the second purpose is कि when you are working in a team, okay, we know that we have a main branch जहाँ पे main code would be there, ठीक है. So what we will do, we will create branches, ठीक है, and we can assign different people on different branches. उससे फायदा क्या होगा? Because we cannot allow everyone to work on the main branch. अगर हर डेवलपर मेन ब्रांच पे काम करेगा, ठीक है, सपोज कुछ हो सकता है कमिट्स उसको रिवर्ट करने हो, या अभी हो सकता है वर्क हैज टू बी ऑथेंटिकेटेड और वेरीफाइड बाय द टीम मैनेजर और टीम लीड. सो वी हैव क्रिएटेड ब्रांचेस. तो जैसे इस ब्रांच पे हमारा डेवलपर 1 इज देयर, इस ब्रांच पे वी हैव डेवलपर 2, इस ब्रांच पे वी हैव थर्ड डेवलपर और फोर्थ डेवलपर वर्किंग ऑल टुगेदर, समथिंग लाइक दिस. तो ब्रांचेस का पर्पस टीम मैनेजमेंट के लिए ये है कि ऑन दी ब्रांचेस डिफरेंट रोल्स आर असाइंड, मतलब डिफरेंट पीपल विल बी असाइंड डिफरेंट ब्रांचेस टू वर्क अपॉन.
Once the work is done, it's verified, it's checked by the team lead, ठीक है, work okay हो जाता है, then that particular branch will be merged. ये वर्ड आप याद रखोगे क्योंकि इसमें merge operations अभी हम पढ़ेंगे. That particular branch will be merged into the main. मेन में उस ब्रांच के काम को हम मर्ज कर देंगे. तो मेन अपडेट हो गया उस वर्क से. सपोज B1 हैज कंप्लीटेड ऑल द ट्रेनिंग पार्ट ऑफ द मॉडल, सो B1 विल अपडेट हिज वर्क, ही विल मर्ज हिज वर्क टुवर्ड्स द मेन. मर्ज का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मर्ज? मर्ज का मतलब होता है टू कॉपी द कंटेंट. ठीक है, मर्ज, मीनिंग ऑफ मर्ज इज कि आपने कुछ काम किया हुआ है एंड यू वांट टू कॉपी द कंटेंट ऑफ योर वर्क इनटू अनदर, ऑनटू द अनदर साइड. दैट इज कॉल्ड मर्जिंग. मर्ज का मतलब ये नहीं कि यहाँ से कंटेंट उड़ जाएगा, मतलब कंटेंट विल बी रिटेन्ड ओवर देयर इटसेल्फ एज वेल, but it will be copied to new location also. That is the meaning of the word merge. Merge means to copy the work of a specific branch onto the another branch. और जरूरी नहीं कि merging जो है वो मेन पे ही हो. आप सपोज दो ब्रांचेस को भी मर्ज कर सकते हो. B2 को B1 में मर्ज कर सकते हो, B2 को B3 में मर्ज कर सकते हो. बट टेक्निकली जब हम व्हेन वी आर कंप्लीटिंग अ वर्क तो हमें मेन कोड अपडेट करना होता है ना, कि मेन कोड में अपडेटेड फाइल्स रहे, मेन फाइल्स रहे. लेट्स सपोज सो इफ माय वर्क इज डन आई विल बी अपडेटिंग माय कोड ऑन द मेन. बट ऐसा जरूरी नहीं है. इट्स नॉट ऑलवेज द थिंग कि यू ऑलवेज हैव टू मर्ज टुवर्ड्स मेन. टुवर्ड्स मेन जरूरी नहीं है. हो सकता है यू वांट द वर्क ऑफ B1 इनटू B2, B2 इनटू B3. दैट डिपेंड्स एज पर सिचुएशन. ठीक है, तो ब्रांचेस का पर्पस आपको समझ आया. सेग्रीगेशन ऑफ द वर्क, टीम मैनेजमेंट, different roles being assigned on different branches, and once the work is done, that branch content will be merged into the specific branch. All right, now let's understand how to create the branches. Next part is basically to create a remote branch. पहले remote पे branches बनाते हैं, फिर local पे बनाएंगे. Now please remember, जब भी आप ब्रांच क्रिएट करते हो ना, यू हैव टू टेक वन बेस ब्रांच. ये क्या है? बेस ब्रांच. यहां से मैं B1 बना रही हूं. सिर्फ क्रिएशन के टाइम पे, ओनली एट द टाइम ऑफ क्रिएशन, अगर सपोज इसमें 4 फाइल्स पड़ी हैं तो इसमें भी 4 फाइल्स विल बी कॉपीड. सिर्फ कब? क्रिएट करने के टाइम पे. वन ब्रांच has to be created from a base branch, from a parent branch, and at the time of creation the contents of the parent branch will be copied onto the another branch. Okay, क्रिएशन के टाइम पे वो कंटेंट इसमें कॉपी हो जाएगा. उसके बाद सपोज आई हैव क्रिएटेड वन जावा फाइल ओवर हेयर, तो ये वाला काम अब इसी ब्रांच, इसका ब्रांच का ही रहेगा. सिर्फ क्रिएशन के टाइम पे पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे. उसके बाद उस ब्रांच पे बैठ के आप जो काम कर रहे हो दैट विल बी रिटेन ऑन दैट ब्रांच ओनली. ये वाला फाइल जो है ये आपको मेन पे नहीं दिखाई देगा. अगर आपने B1 पे जो काम किया वो B1 पे रहेगा, मेन पे जो वर्क किया वो मेन पे रहेगा. इज इट क्लियर? Because this is very important before we start. At the time of creation from the base branch, all the contents of the base branch will be copied into the child branch. Afterwards, whatever work you are doing sitting on a specific branch, that will be retained on that branch only. It will not be copied onto the another branch. क्लियर इट इज? इसमें बेटा कोई डाउट है तो आप पूछ लो.
Any other things are clear? Then we'll start with the demonstration part. हाँ मैम क्लियर है. Now let's go to GitHub. How many branches we are able to see? Just one branch. ठीक है? And what I had written over here, how to create a remote branch. ठीक है? So what I will do, I will create B1. ठीक है? From the branch, parent branch obviously एक ही branch दिख रही है main. You can create the branch, कोई भी parent branch ले सकते हो, main B1, B2, but since यहाँ पे तो एक ही branch है. So what I want to create B1 from the main branch. ठीक है? And we have understood that at the time of creation, all the contents of main will be copied into B1. Okay, so let's start with this. Branches कैसे बनानी है? यहाँ पे जाइए, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है. ये जो ड्रॉप डाउन आ रहा है ना, click over here. I think the screen is visible now. Write down. Give the name of the branch. I want to create B1. Create B1 from main. जल्दी से करो और इस पे क्लिक कर देना. ठीक है? We'll click over here. Now please check from here. Create B1 from the main branch. Okay, now you see जो भी कंटेंट थे ना मेन ब्रांच में 1 2 3 4 5 6, आई हैड 6 फाइल्स. ठीक है ना? सो इसमें आप चेक करो, स्विच ओवर करो, चेकआउट करो मेन पे. चेकआउट मीन्स टू स्विच ओवर. प्लीज नोट दिस वर्ड चेकआउट बिकॉज अभी हम चेकआउट ऑपरेशन भी यूज करेंगे. चेकआउट मीन्स टू स्विच टू अनदर ब्रांच. 1 2 3 4 5 6, ये 6 फाइल्स जो थी यहाँ पे भी थी, मतलब नंबर ऑफ कमिट्स वर 7. If I'll switch or if I'll check out to B1, the number of files are 6 over here. Is it clear? Check करो. जिस पे भी आप currently हो, that is known as active branch. All right. Now
यू हैव टू क्रिएट, और या फिर एक नया जो है कमिट आपने करना है ऑन द ब्रांच B1. ठीक है, सो आई एम राइटिंग वन क्वेश्चन ओवर हियर. Commit a change on B1 मतलब नई ब्रांच पर एक नया फाइल अपलोड करो और उस फाइल को कमिट करो. ठीक है, ऑन दैट ब्रांच. गिटहब पे मैं बात करें, आई एम टॉकिंग ऑफ गिटहब, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ गिट. ठीक है, डू दिस वन. अब देखो नंबर ऑफ ब्रांचेस भी यहाँ 2 दिख रही हैं. यू एबल टू सी द नंबर ऑफ ब्रांचेस, दे आर 2. दो कैसे, एक मेन और एक B1. कंप्लीट अप टिल हियर बेटा. मैम यस बताओ. मैम आपका ये कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट कैसे है यहाँ पे? आपका नहीं आया पुल रिक्वेस्ट? आपने ब्रांच में अपडेट किया, पुल रिक्वेस्ट नहीं पहुंचे आप लोग वहां तक? मैम मैंने ब्रांच को अपडेट किया, B1 क्रिएट कर दिया, बट अभी ऑलराइट, वैसे नहीं। B1 क्रिएट हो गया तो B1 पे एक फाइल अपलोड किया आपने, एक कमिट और बढ़ाया. नो मैम, अभी फाइल अपलोड नहीं की। तो अपलोड अ फाइल ना. जब हम एक फाइल अपलोड करेंगे तो B1 का एक कमिट बढ़ जाएगा. तो पर्पस इज, प्लीज पहले यहाँ पे चेक करेंगे सभी स्टूडेंट्स, पर्पस क्या है. देखो मैंने ना B1 पे एक फाइल असाइनमेंट FOPL करके अपलोड करी थी. ऑलराइट, अब वो B1 पे जो काम है वो B1 का है, मेन पे वो फाइल नहीं दिख रही है. मेन पे अभी भी वही पुराना कंटेंट है. जो वॉट एवर वर्क you are doing sitting on a specific branch, sitting on that active branch will be reflected only on that branch. क्योंकि एक फाइल नया अपडेट हुआ तो डेफिनेटली एक कमिट अहेड हो गया B1 आपके मेन से. और पुल रिक्वेस्ट क्या है ये आई विल टेल यू, बट आप पहले यहाँ तक पहुंचेंगे सभी स्टूडेंट्स. ये हाउ, बाय अपलोडिंग अ न्यू फाइल ऑन B1. करिए बेटा इसको कंप्लीट.
All right, now let us understand compare and pull request. ठीक है, now please remember, अभी जब हम मेन पे थे, all right, we were on main and मेन पे कितनी फाइल्स थी, मेन पे we had 7 फाइल्स या 7 commits. B1 पे जब B1 क्रिएट हुआ, all the same files were even copied to B1 as well. उसके बाद what I did कि B1 पे एक नया फाइल अपलोड किया, तो नंबर ऑफ फाइल्स कितनी होगी, 8, या नंबर ऑफ कमिट्स were increased, isn't it? Can I say this that B1 is ahead of main? ये स्टेटमेंट ठीक है? अगर ठीक है तो फिर आगे प्रोसीड करते हैं, या इसमें कोई डाउट है तो आप बताओ. हाँ मैम, स्टेटमेंट सही है. Now B1 is ahead of main. Why? Because number of commits बोल लो, prominently तो वही बोलना पड़ेगा. Number of commits in B1 is more in comparison to the main. That is why B1 is termed as ahead. All right. Then the next step is यहाँ पे one thing is coming compare and pull request. तो pull request क्या है? What is pull request? We are on GitHub, we are on remote, ठीक है? So pull request is a way to initiate or to merge the branches on remote. GitHub पे अगर आपको branches को merge करना है तो there is an operation that is known as pull request. पुल रिक्वेस्ट, इसको PR बोलते हैं, टेक्निकल टर्म है PR. ये पुल ऑपरेशन नहीं है, पुल ऑपरेशन अलग है. दिस इज पुल रिक्वेस्ट, दिस इज अनदर सेट ऑफ ऑपरेशन. ऑलराइट, नाउ मर्ज क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मर्ज फर्स्ट. ठीक है, आई एम ऑन मेन and I had created a branch B1, I had done some work on B1. Now from my side the work is complete. I want to merge my work towards the main branch. Merging का पहला condition होता है कि जो आपका initial branch है that should be ahead. जैसे I want to merge B1 into main, तो अगर इसमें let's suppose if I have 7 commits over here, तो इसमें 8 commits होने चाहिए, मतलब B1 should be ahead of main, then only I can merge. ठीक है, हमेशा always remember the branch that is ahead will be used for merging into another branch. अब यहाँ पे main भी हो सकता है, B2 भी हो सकता है, B3 भी हो सकता है. All right, it can be anything, but whatever is the initial branch, that should be ahead. Whatever is the initial branch, that should be ahead. All right, तो यहाँ पे जब हम merge करते हैं ना, we have to initiate a pull request. Pull request is a kind of request to the admin to initiate the merge process. अगर हमको अपना काम merge करना है तो firstly we have to take the permission, we have to request the admin that we want to merge. Admin जो है वो work verify करेगा, उसके बाद if he feels that the work is okay, then he will basically
initiate the merge process, automatically merge the branches, and then that pull request will be closed. तो pull request के steps होते हैं कि पहले जो है आप pull request initiate करते हो, initiate बोल लो या फिर create बोल लो. उसके बाद you check the condition कि आपकी जो branches हैं वो merge भी हो सकते हैं कि नहीं. Suppose B1 is behind main, इसमें 7 कमिट्स है, उसमें 6 कमिट्स हैं, तो मर्जिंग पॉसिबल ही नहीं है. कॉपी तो आप कहीं पे तब करोगे ना जब आपको इस कंटेंट ज्यादा है. अगर कंटेंट ही सेम है, पुराना वही कंटेंट है, तब क्या कॉपी होगा. तो आपका सीधा मैसेज आ जाएगा नथिंग टू मर्ज, एवरीथिंग इज अप टू डेट. तो मर्ज रिक्वेस्ट, मर्ज इशू करने के लिए वी हैव टू initiate a pull request. We have to check the condition whether that branch is ahead or not. If the branch is ahead, then that pull request will be authenticated, that merge process will be confirmed by the admin. उसके बाद जो है that pull request will be closed. उसके बाद pull request will be closed. ठीक है. So what you have to do, all of you please follow the things. Compare and pull request, click on compare and pull request. You have to do the things alongside with me. Click on compare and pull request. Once you have clicked on compare and pull request, ठीक है, तो यहाँ पे एक मैसेज आपको दिख रहा होगा. Pull request will be created, pull request will be opened, isn't it? So you will be able to see this kind of message. जिस ब्रांच को आप मर्ज करना चाहते हो दूसरी ब्रांच में, डेफिनेटली द कमिट्स आर अहेड. इसमें 8 हैं और इसमें 7 थे. Since on comparison this branch is ahead of the another branch, therefore the condition is satisfied, that is the branches can be merged. तो ये तो यहाँ satisfy हो रहा है. तो pull request open हुआ, conditions check हुई, pull request create हुआ. करिए पहले यहाँ तक. All of you must do up till here. ठीक है. All right, clear up till here? Yes, ma'am. Then you click on merge pull request. Merge pull request मतलब it will be authenticated by the team manager या team lead कि ठीक है, whatever work is done that is okay. Confirmation for the merge could be given. ठीक है. Pull request successfully merged and closed. तो पहले pull request open होगी, merge की condition check होगी, pull request create होगी, permission grant होगी, automated merge होगा और फिर पुल रिक्वेस्ट क्लोज हो जाएगा. और फाइनली आउटकम क्या रहेगा? B1 का जो कंटेंट था, अपडेटेड कंटेंट, that should be reflected on the main as well. Now the contents of B1
and the contents of main are equal after the merge step. ठीक है, नाउ यू चेक दी ब्रांचेस B1. अब देखो दो ब्रांचेस है, वी हैव टू ब्रांचेस. मर्ज का भी पुल आपका कमिट आईडी इज बीइंग क्रिएटेड. ठीक है, मैं B1 ब्रांच पे जाऊंगी तो वो सेम फाइल जो यहाँ पे थी, ठीक है, दैट विल बी अपडेटेड इन द मेन ऑल्सो आफ्टर द मर्ज. मर्जिंग के बाद जो B1 का अपडेटेड कंटेंट है वो मेन में भी दिखाई देगा. अब B1 और मेन जो है दे आर equal in terms of commits या in terms of files या contents. The contents of B1 is now equalized with the content of main. चेक करो सर अपने एंड पे. Done, ma'am. ऑल राइट बेटा, और किसी को कोई डाउट है तो बताओ, क्योंकि आई विल बी राइटिंग अ क्वेश्चन देन. Question is create a branch B2 from B1. Okay, then update a file on finally merge the B3 sorry B2 towards B1. ठीक है, करिए इसको जरा. टेक 5 to 10 minutes to complete this. करो बेटा, इसको कंप्लीट करो फटाफट से. टेक 5 to 10 minutes. And if in case of any doubt, please ask. I'm done. All right, good. बाकी भी करो. I will wait for 5 minutes only. ठीक है, कोई डाउट है तो फिर पूछो. ये रिमोट पे मर्जिंग है. रिमोट पे मर्जिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ पुल रिक्वेस्ट. ये मर्ज जो करना है ना, ये कैसे करना है? ये बेटा आपने पुल रिक्वेस्ट रेज करनी है. PR2 रेज करोगे आप. पुल रिक्वेस्ट PR. Ma'am. Excuse me, ma'am. यस. मैम हम मेन और B1 को ऑलरेडी मर्ज कर चुके हैं. ऑल राइट.
तो अभी हमने जैसे B2 को B1 में मर्ज किया तो उसकी फाइल मेन में क्यों नहीं शो हो रही? मतलब उनको पहले हम मर्ज कर चुके हैं, राइट? तो चेंजेस कॉपी नहीं होते क्या दोनों में, या फिर उसमें नहीं, वापस अलग से करना पड़ेगा? ओनली एट द टाइम ऑफ क्रिएशन द कंटेंट्स विल बी पास्ड, उसके बाद ये अलग अलग ब्रांचेस की तरह बिहेव करेगी. वॉट एवर ओके यू आर डूइंग दैट विल बी सेग्रीगेटेड. ओके. मैं मेरा डिफॉल्ट डायरेक्ट मेन में चला जा रहा है B2 में. अगर मैंने फाइल अपलोड किया ना, मर्ज करने के बाद वो मेन में हो रहा है. स्क्रीन शेयर करो, आई वांट टू चेक. ठीक है. Yeah. So this is my B2 branch. ठीक है, B2 ब्रांच. ऑल राइट. तो यहाँ पे मैं फिर से एक फाइल अपलोड कर देता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे दिखा रहा है फाइल कौन सी अपलोड की है आपने? अभी ये वाली की प्रेसिडेंट इन्फो डॉट. अच्छा ठीक है, ओके फाइन. तो यहाँ पे मेरे को दिस ब्रांच इज 1 कमिट बिहाइंड ऑफ एंड 3 कमिट्स बिहाइंड मेन ऐसा दिखा रहा है. ठीक है, फिर When I just click on 1 comment ahead, so it is able to merge the file. So create merge. ठीक है. Create नहीं, रुको 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 रुको, एक मिनट रुको. बैक जाओ जरा. मर्ज करने के बाद तो बेटा कंटेंट B2 और मेन के बराबर ही हो जाएंगे ना. बैक जाओ, जस्ट बैक जाओ, प्रैक्टिस पे जाओ जहाँ आपका रिपोजिटरी है. हाँ. अभी आप देखो B2 में आपने प्रेसिडेंट वाला फाइल डाला. Yes. ब्रांच चेंज करो, ये ऊपर से जो ड्रॉप डाउन है ना B2 के ऊपर, हाँ. चेकआउट टू मेन, चेकआउट टू मेन, गो टू मेन, मेन ब्रांच पे जाओ. यहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं है. हाँ ठीक है भाई, जब आप B1 पे बैठ के कुछ काम कर रहे हो या B2 पे बैठ के कुछ काम कर रहे हो, वो उस ब्रांच का वर्क है, दूसरी ब्रांच पे नहीं जाएगा. कब तक नहीं जाएगा? या तो फिर आप बोलो कि वर्क इज डन, आई वांट टू मर्ज द कंटेंट्स. ओके. आर यू गेटिंग? मतलब अगर यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट रेज कर रहे हो, जैसे आप यू गो टू B2 था ना जो आपने बनाया था, तो यहाँ पे ये ठीक बता रहा है कि ये ब्रांच जो है दैट इज 1 कमिट अहेड ऑन एंड 3 कमिट बिहाइंड ऑफ मीन. मतलब इसमें 3 कमिट्स ऐसे हैं जो आपकी मेन में नहीं है. मतलब दिस ब्रांच इज अहेड ऑफ एंड 3 कमिट्स बिहाइंड मेन. कुछ फाइल्स जो है 1 फाइल इज अहेड एंड 3 कमिट्स जो ऐसे हैं वो मेन में है और इस ब्रांच में नहीं है. तो देखो, जब हम कॉपी करते हैं किसी चीज दूसरे बेस फोल्डर की तरफ, तो जो हमने कॉपी करना है ना, वो कंटेंट अगर अपडेटेड होगा तभी दूसरे में कॉपी होगा.
अब वहां पे जो फोल्डर है या तो उसमें कंटेंट कम हो सकता है या उसमें कंटेंट बराबर हो सकता है। बराबर होने पे भी मर्जिंग नहीं होगा, कॉपी नहीं होगा, ऑलरेडी कंटेंट्स पे यहाँ से आ जाएगा, द कंटेंट्स आर ऑलरेडी अप टू डेट। ठीक है। yes. तो पुल रिक्वेस्ट से तो ऑटोमेटिक मर्जिंग होगी, पुल रिक्वेस्ट से मर्ज प्रोसेस इनिशिएट होके कंप्लीट होगा। इस वजह से दोनों ब्रांचेस पे द कंटेंट्स विल बी इक्वलाइज्ड आफ्टर मर्ज, ओनली आफ्टर मर्ज, नॉट बिफोर मर्ज। ओके ठीक है, चलिए लो आई शेयर माय स्क्रीन। और बेटा किसी का डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, तो दिस वाज योर रिमोट मर्जिंग। ठीक है, रिमोट मर्जिंग इज कंप्लीटेड विद द हेल्प ऑफ पुल रिक्वेस्ट। ब्रांचेस का वर्क क्या है? वर्क सेग्रीगेशन। When you're sitting in one active branch, that work will be confined to that active branch, whatever updates you are doing. If you want that updates to be reflected onto the another branch, then you have to use the merge process, otherwise नहीं। ठीक है, now ये तो आपका हो गया रिमोट ब्रांच। अब हम गिट पे वापस चले जाते हैं, सेम लोकेशन से ही ओपन करना है। प्लीज डू नॉट चेंज द लोकेशन, प्लीज डू नॉट चेंज द लोकेशन। गिट ब्रांच अगर मैं इफ आई एम यूजिंग, यहाँ पे तो सिर्फ लोकल ब्रांच दिखाई दे रही है, ओनली लोकल ब्रांच इज रिफ्लेक्टेड टू यू। मतलब रिमोट के ब्रांचेस रिमोट में हैं, लोकल के ब्रांचेस लोकल में हैं। ठीक है, एंड इफ आई वांट कि वो ब्रांच यहाँ पे आए, आई हैव टू फेच अ ब्रांच, आई हैव टू फेच अ ब्रांच। ठीक है, तो सबसे पहले इसको तो डिलीट कर देना, ये तो दो ब्रांचेस बनी हुई ना, इसमें से लेट्स डिलीट। अगर आपने सेकंड ब्रांच बना रखी, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे थी एंड आई क्रिएटेड B2 ब्रांच, जो मैंने आपको वर्क दिया हुआ था। ठीक है, कंटेंट सारे जो B1 के थे वो B2 में आ गए, मेन से बनाई होती तो मेन के कंटेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, आई वांट टू डिलीट द ब्रांच। रिमोट ब्रांच कैसे डिलीट होगी? यहाँ पे जाओ, क्लिक ओवर हियर एंड क्लिक ऑन द डिलीट बटन। सपोज आई वांट टू डिलीट B2। ठीक है, B2 मुझे डिलीट करना है। ये जो ये बिन बटन बना हुआ है ना, इससे डिलीट हो जाएगा। बिन बटन से बेटा डिलीट कर लो। ठीक है, करिए बेटा, रिमोट पे ब्रांच डिलीट करोगे। B2 ब्रांच प्लीज डिलीट फ्रॉम द रिमोट। B2 branch you all have created, please delete from the remote. All right. B2 ब्रांच को डिलीट कर दो आप। You delete the B2 branch from the remote, from the remote. Yes. ठीक है बेटा, नाउ
What you have to do, git bash open करो, ठीक है। अब इसमें लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू क्रिएट द लोकल ब्रांचेस। लोकल ब्रांचेस कैसे क्रिएट करनी है? टू क्रिएट अ लोकल ब्रांच। हाउ टू क्रिएट अ लोकल ब्रांच? गिट पे जाओ, गिट बैश पे, ओके वहां पे आप टाइप करो गिट। तो लिस्टिंग होता था, ठीक है ना। The command is git branch and name of the branch which you want to create. What is the command? The command is, इसमें भी इसमें आपको एक बेस रूल बताऊंगी, अभी जस्ट मुझे कंप्लीट करने दो ये चीज ना। सॉरी, ब्रांच नेम, जो भी आप ब्रांच का नाम रखना चाहते हो दैट नेम यू हैव टू गिव। अब एक बेस रूल बेटा आप याद रखोगे, आपके लोकल में ये जो फोल्डर है ना आपको दिख रहा है, दिस फोल्डर, एक ही फोल्डर बनेगा, ओनली वन फोल्डर विल बी देयर irrespective of the number of branches. This is very important point. एक ही फोल्डर बनेगा, चाहे आप 10 ब्रांचेस क्यों ना रख लो। जब भी आप दिस ब्रांच में पहुंचोगे उसके अकॉर्डिंगली आपको कंटेंट्स प्लस माइनस हो जाएंगे। Only one folder will be created irrespective of the number of branches जो आपने क्रिएट की हुई है। मतलब अगर 4 ब्रांचेस है तो 4 अलग अलग फोल्डर नहीं बनेंगे, एक ही फोल्डर बनेगा। जिस ब्रांच पे आप जा रहे हो उसके अकॉर्डिंगली आपको उसके कंटेंट्स दिखाई देंगे। ओनली वन फोल्डर विल बी रिफ्लेक्टेड टू यू ऑन योर लोकल, यही फोल्डर दिखाई देगा। B2 पे जा रहे हो तो उसके कंटेंट्स दिखाई देंगे, कैश मेमोरी में चले जाते हैं ना कंटेंट्स, तो प्लस माइनस हो जाएंगे कंटेंट्स। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रीड दिस पॉइंट। ओके नाउ लेट्स सी। अब देखो नया ब्रांच बनाना है लोकल में, ठीक है। सो हाउ टू क्रिएट अ ब्रांच, गेट, पहले तो आप इसमें ये चेक करो ब्रांचेस कितनी है, एक ही ब्रांच है मेन ब्रांच। आई हैव टू क्रिएट अ लोकल ब्रांच, ये मैं रिमोट पे नहीं बना रही, एंड दिस विल बी विजिबल ओनली ऑन द लोकल, जब तक कि मैं इसको ऊपर पब्लिश नहीं करती। गेट ब्रांच B11 नाम रख लेते हैं, ठीक है। whether this branch is created or not, I'll again use this git branch command। तो B11 और मेन यहाँ पे क्रिएट हो गया है। चेक करना बेटा इसको जरा फटाफट से।
डन मैम। ऑलराइट, ठीक है बेटा। अब देखो अगेन द सेम थिंग कि जब आप ब्रांच क्रिएट कर रहे हो ना, अगर आप मेन से जो ब्रांच बना रहे हो, इफ मेन इज द बेस ब्रांच, द पेरेंट ब्रांच, तो द कंटेंट्स ऑफ मेन, जितने भी मेन के कंटेंट्स थे, मेन में कितने थे 7 फाइल्स आर देयर, इजंट इट? तो सारी फाइल्स आपके B1 पे भी रिफ्लेक्ट होंगी। इफ यू हैव 7 फाइल्स ओवर हियर, at the time of creation it will be reflected on B1 as well. all right, कैसे पता चलेगा? अच्छा एक चीज और है, अभी हम जब जिस ब्रांच पे एक्टिव ब्रांच पे हैं तो ऐसे ग्रीन कलर ऐसा दिख रहा है ना, ये एक्टिव ब्रांच दिखाई दे रही है। इफ आई वांट टू स्विच टू द ब्रांच, दूसरी ब्रांच पे अगर मुझे जाना है, इफ आई वांट टू स्विच टू द अनदर ब्रांच दैट इज B11, तो आई हैव अ कमांड git checkout B11। आप ब्रांच का नाम दे दो, you will be switched to that another branch। ठीक है, इसको एक बार एग्जीक्यूट करोगे ऑल द स्टूडेंट्स। आई एम सेंडिंग द स्क्रीनशॉट इन द चैट बॉक्स ऑल्सो। फिर दोबारा इसको मेन में चेकआउट करके देखो, दोज हु हैव डन इसको वापस चेकआउट करो। यूज द चेकआउट कमांड। चेकआउट कमांड इज यूज टू स्विच ओवर द ब्रांचेस। जैसे गिटहब में तो आपके पास सिंपल वो ड्रॉप डाउन था, तो आप स्विच कर जाते थे दूसरी ब्रांचेस में। यहाँ पे यू हैव अ टेक्निकल कमांड फॉर दैट, technical operation for that, that is checkout। करिए बेटा। मैम कमांड एग्जीक्यूट हो गया है, बट क्या मैम लोकल में भी B11 करके फाइल क्रिएट होगा? हेलो यस, रिपीट अगेन, क्या कह रहे बेटा? मैम, कमांड एग्जीक्यूट हो गया है, तो मैम ये कमांड जो B11 है, मैम कमांड जो ये तो मैम ये एग्जीक्यूट तो हो गया है मैम सक्सेसफुल, बट क्या ये हमारी जो फाइल जहाँ पर हमारी स्टोर है वहाँ B11 करके एक ब्रांच क्रिएट हो जाएगा? नहीं, सी इफ यू चेक ना, यहाँ पे ls करके मैं चेक करती हूँ, इसमें कंटेंट्स देखो, वही कंटेंट्स हैं जो मेन के कंटेंट्स हैं। मतलब कंटेंट्स जो है ना, फोल्डर यही बनेगा। जब आप ब्रांचेस पे स्विच ओवर करते हो ना, तो जो स्पेसिफिक ब्रांच के कंटेंट्स होते हैं पुरानी वाली ब्रांच के, वो कैश मेमोरी में चले जाते हैं। दैट इज व्हाट आई सेड। जैसे अब अगर मैं यहाँ पे एक फाइल अपडेट करूंगी, ठीक है, जिस ब्रांच पे मैं हूँ करंटली, ये फोल्डर उसी के कंटेंट्स रिफ्लेक्ट करेगा। ऐसा नहीं कि पुरानी ब्रांचेस के कंटेंट कहीं चले गए हैं, वो कैश मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं टेम्परेरी बेसिस पे। सो इफ आई वांट अ पर्टिकुलर ब्रांच, जैसे कि अब देखो नेक्स्ट चीज जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, दैट वाज कि एट द टाइम ऑफ क्रिएशन, क्योंकि आई हैड क्रिएटेड अ ब्रांच B11 फ्रॉम मेन, तो मेन के जितने कंटेंट्स थे, लाइक इसको मैं थोड़ा क्लियर करती हूँ। गेट चेकआउट, अगर मैं मेन पे जाऊं, ठीक है, इसको आप ये जो मैसेज आ रहा है, इसका मतलब ये है क्योंकि ऊपर कुछ चेंजेस किए हुए थे, इस वजह से ऐसे दिख रहा है। तो इसको तो फिलहाल के लिए हम पुश ऑपरेशन अभी यूज नहीं करेंगे।
पहले इसको खत्म करते हैं, ठीक है। मेन पे चले गए, ऑलराइट। मेन पे कितनी फाइल्स है? मेन पे है 7 दिखाई दे रहा है आपसे। इवन आई कैन यूज ls कमांड। ls से क्या होता है? लिस्ट द नेम्स ऑफ द फाइल्स विच आर देयर ऑन दैट फोल्डर, स्पेसिफिक ब्रांच की। 1 2 3 4 5 6 7 नाउ इफ आई चेक आउट टू B11, ठीक है, फोल्डर एक ही बना हुआ है। ये फोल्डर जो है ना, दिस इज ओनली वन, वही फोल्डर है उसी लोकेशन पे। ls करके चेक करूंगी, वही कंटेंट्स दिख रहे हैं। इनफैक्ट फोल्डर में जाके चेक करूंगी तब भी आई एम एबल टू सी द 7 फाइल्स इटसेल्फ, क्योंकि जब मैंने क्रिएट किया था मेन से, तो मेन वाज हैविंग 7 फाइल्स। सो एट द टाइम ऑफ क्रिएशन द पेरेंट के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स चाइल्ड में चले जाते हैं। उसके बाद सपोज इफ आई एम डूइंग सम चेंज, तो दैट चेंज विल बी रिफ्लेक्टेड ओनली ऑन B11, ठीक है। इसको पहले एग्जीक्यूट करो, फिर इसमें हम कुछ फाइल्स अपडेट करेंगे और चेक करेंगे फोल्डर में कि, और इनमें इनफैक्ट ls लगा के भी कि वो कंटेंट्स वहां पे अपडेट हुए कि नहीं। प्लीज कंप्लीट दिस बेटा, चेक करो जरा ls लगा के कंटेंट्स। ऑल ऑफ यू मस्ट वेरीफाई द कंटेंट्स ऑन बोथ द ब्रांचेस एंड ऑल्सो चेक एट योर साइड की फोल्डर एक ही बना हुआ है ना। मैम एक डाउट था। यस, लेट्स से इफ आई एम इन दिस ब्रांच B11 और ऑलराइट। मैं जिस फोल्डर में कुछ फाइल उसमें डाल दूँ, लाइक जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसमें डाल दूँ, सो एट दैट पॉइंट कमिटेड नहीं है, वैसे कुछ नहीं है। And before I commit that new file, if I change back to main, what will happen to that file? Will it um, disappear? If I switch back to B11, will I have the chance to add it again? क्या होगा उस scenario में? See, if you haven't used the staging wala operation, add operation या commit operation, that will still remain as untracked file. मतलब it could be copied to main, ls में वो फाइल दिखाई देगी, क्योंकि ls तो लोकल फोल्डर के कंटेंट्स बताता है, समथिंग लाइक दिस। गिट के कंटेंट्स नहीं बताता, ls मीन्स लोकल कंटेंट्स, ठीक है। दैट विल बी रिफ्लेक्टेड ओवर हेयर, प्लस वो अनट्रैक्ड फाइल रहेगी। मीन्स समहाउ या तो वो चेंजेस आपको स्टैश करने पड़ेंगे। आई टेल यू द स्टैश ऑपरेशन ऑल्सो, स्टैश अभी बताया नहीं मेरे खैर। या तो उसको कहीं पे टेम्परेरीली स्टोर करो उस फाइल को, क्योंकि दैट वुड बी लेबल्ड एज अनट्रैक्ड फाइल। तो जब भी आप स्टेटस चेक करोगे तो बार बार दिखाएगा अनट्रैक्ड फाइल इज देयर, अनट्रैक्ड फाइल इज देयर, ऑलराइट। इधर यू सेव इट टेम्परेरीली या फिर इसको अहेड लेके जाओ, कैसे ऐड करो और कमिट करो, Okay. ऑलराइट। तो So फाइल even वहां when I switch to या main, it will still show that untracked, and I could commit it either there or I could go back to the branch and commit it there. या मतलब अनट्रैक्ड रहेगी। इफ यू वांट कि वो फाइल आपको चाहिए ही नहीं है, तो उसको कहीं और कट करके उसको कमेंट कर दो कि आई हैव कमिटेड with respect to the deletion or removal of that file from that folder, or I want to keep that file. So in order to retain that file, I would be staging and I would be committing that file. So that's up to you. अगर remove करना तब भी commit करना पड़ेगा, अगर रखना है उसको तब भी commit करना पड़ेगा, क्योंकि status तो untracked रह जाएगा। Status would be untracked। अगर हमने कुछ भी git repository में कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं, स्टेज नहीं हुए, कमिट नहीं हुए, तो अनट्रैक्ड है। अगर ऐड कर दिया तो स्टेज्ड है, अगर कमिट कर दिया तो फाइनली सेव हो गए। कमिट से वापस जाना है वर्किंग डायरेक्टरी पे, तो रिवर्ट ऑपरेशन। स्टेजिंग गलती से कर दिया तो रीसेट ऑपरेशन। वर्किंग डायरेक्टरी में बाय मिस्टेक यू एडेड द फाइल्स, यू डोंट वांट दोस फाइल्स, फिर स्टेज आउट करके उसको बाहर करो चेंज को, बिकॉज अनट्रैक्ड फाइल या मॉडिफाइड फाइल इस तरीके से आपको दिखाई देगा। अगर नई क्रिएट किए तो अनट्रैक्ड, फाइल में कुछ चेंजेस किए तो मॉडिफाइड। Okay. All right. Thank you. ऑलराइट, ठीक है।
सो लेट्स कम बैक ओवर हेयर, यहाँ पे थे हम लोग, ठीक है। नाउ फटाफट से क्या करो, ऑन B11 क्रिएट नया फाइल ही बना लो, क्योंकि वो आपको फिर प्रॉपरली कन्वे भी हो जाएगा। उसके बाद जो मर्जी चेंजेस करो, क्रिएट अ न्यू फाइल एंड कमिट इट। कमिट मतलब ऐड भी करना पड़ेगा, along with that commit भी करना पड़ेगा, ठीक है। on B11 you should be on the branch B11, your active branch should be B11। क्लियर कर देती हूँ स्क्रीन। B11 ब्रांच पे आप हो एंड फोल्डर ये है, आई वुड बी क्रिएटिंग न्यू फाइल, लेट्स सपोज B11 ही बना लेते हैं, ठीक है। B11 I will be adding that file. I will be using a commit operation to finally save that file, ठीक है। And then I'll go back to checkout। पहले इधर स्क्रीन पे देखोगे, फिर आप अपनी साइड पे करना। अभी इफ यू चेक B11 ना, इस पे फाइल अभी मैंने क्रिएट करी थी B11.txt। इफ आई गो बैक टू मेन, देखो फोल्डर एक ही बना हुआ है, इसमें कितनी फाइल्स दिख रही है, 8 फाइल्स, क्योंकि एक नई फाइल बनाई है मैंने, गेट चेकआउट मेन, है ना। सो अगर मैं यहाँ पे देखूं, फोल्डर पे जाऊं यहाँ पे, तो अब यहाँ कितनी आइटम्स दिख रही हैं, 6 आइटम्स आर रिफ्लेक्टेड ओवर हियर, ठीक है। B11 इज अहेड ऑफ 2 फाइल्स, एक फाइल में पहले भी ऐड कर चुकी हूँ इसमें, ऑलराइट। सो ls करके देखेंगे, so these are the files over here। ठीक है, ls करके देख लो। अब चाहे फोल्डर देख लो, वो देखो, अब आप जिस पे भी चेकआउट हो रहे हो ना, उसके अकॉर्डिंगली कंटेंट्स वो दैट इज रिफ्लेक्टिंग टू यू। क्लियर? अब आप करिए। Complete this beta, then I'll write another question as well। अभी this is basically the रिमोट ब्रांच, ये ना रिमोट ब्रांच है आपकी, ठीक है। सॉरी, लोकल ब्रांच। रिमोट पे ये ब्रांच नहीं गई, ना ही रिमोट पे लोकल वाली ब्रांच आई है। कंप्लीट दिस वन बेटा।
हेलो यस, बताइए। मैम, मैंने वहाँ पर फाइल क्रिएट किया जहाँ पर मेरा पेज था। फिर मैं अच्छा, गिट ठीक है। ऐड कर रहा हूँ, तो मैम वहाँ पर लिख रहा है कि गिट ऐड इज नॉट ए गिट कमांड, क्रिएट अ गिट। नहीं, गिट ऐड स्पेस डॉट लगा रहे होगे ना, मतलब कमांड, या तो आप फाइल का नाम या लगाओ इसके आगे, राइट द कमांड प्रॉपर्ली ना, या ये लगाओ, या फिर जो फाइल बना रहे हो। ठीक है, क्लियर। Verify the files on v11 and main using ls. Let us go to, अगर हमें फाइल्स देखनी है कि which branch is ahead, alright, if we want to compare the branches, better word होगा compare, in order to compare the branches, we will be using the diff command. diff मतलब डिफरेंस, जब आपको दो ब्रांचेस कंपेयर करनी है, या डिफ कमांड स्पेसिफिक फाइल्स बिटवीन ब्रांचेस भी कंपेयर कर सकता है, या डिफ कमांड स्टेजिंग एरिया और अनस्टेज एरिया का भी डिफरेंस इंस्टेंशिएट कर सकता है। ऑलराइट, बट लेट्स फर्स्ट कंपेयर द टू ब्रांचेस। ठीक है, तो व्हाट वी विल डू, वी हैव दिस कमांड git diff b11, दो ब्रांचेस का आप नाम लिखो, डबल डॉट मेन। ठीक है, व्हाट यू ऑल हैव टू डू, अगर मुझे दो ब्रांचेस जो है कंपेयर करनी है, इफ आई वांट टू कंपेयर द टू ब्रांचेस ऑफ द लोकल, ठीक है, कि भी जो ऑब्वियसली जिसमें अहेड कंटेंट्स होगा उसमें इंसर्शन मोड दिखाएगा, जिसमें कंटेंट्स कम है उसमें डिलीटेड मोड दिखाएगा, इजंट इट। तो अब आप सभी ये चलाएंगे, यू ऑल विल एग्जीक्यूट दिस पर्टिकुलर डिफ कमांड। ठीक है, चेकआउट आप किसी पे भी कर लो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फटाफट से करेंगे। मैडम कुछ नहीं आ रहा, एग्जीक्यूट किया तो मतलब कुछ नहीं आ रहा, मतलब गिट डिफ b11 डॉट डॉट मेन, तो इंटर करने के बाद कुछ नहीं आ रहा। व्हाट अबाउट Screenshot. अदर्स, बाकी बच्चे? I'm getting the deleted file mode. राइट, I was currently in main. I don't think that matters, but I did diff b11 main. मयूर, आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजो, आई वांट टू चेक यू वर ऑन मेन एंड यू हैव टू यूज द कमांड समथिंग लाइक दिस। ठीक है, एक मिनट मैं आपका स्क्रीनशॉट चेक कर लेती हूँ।
Send me the screenshot. I'll check. Mayur main branch पे you must go to the active branch main. ठीक है, main पे switch हो जाओ and then put this command. ये आपका जो ahead branch होती है ना, this is that one and ये behind वाले branch है. बट आप जब डिफरेंस देखते हो ना, तो आपकी जो एक्टिव ब्रांच है मयूर, वो यहाँ पे दैट शुड बी मेन, क्योंकि भाई जिसमें कंटेंट कम है हम उसी से कंपेयर करेंगे ना, उसी में डिफरेंस विल बी देयर. अगर B11 पे बैठ के हम कंपैरिजन कर रहे हैं, B11 का कंपैरिजन विद रिस्पेक्ट टू आपका द पार्ट जहाँ पे सबसे पहला सब्ट्रैक्टेंट ही आप B11 लिख रहे हो, ठीक है, तो वो इस वजह से क्योंकि दोनों सेम ही हैं, दैट इज वाई उसका आउटपुट आपको रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा. ठीक है, तो मयूर यू हैव टू बी ऑन मेन. मेन पे चले जाओ, चेकआउट टू मेन. ऑलराइट, अगर आप B11 पे बैठ रहे हो और आप उस पर चेकआउट लगा रहे हो तो आपको डिलीटेड मोड दिखाई देगा, और मेन को आगे रख रहे हो तो इंसर्टेड मोड दिखाई देगा, न्यू फाइल इंसर्टेड दिखाई देगी. कंटेंट अहेड होना चाहिए तभी डिफरेंस दिखाई देगा. डिफरेंस का आउटपुट इसलिए नहीं आ रहा होगा, या तो कंटेंट पीछे है या आपने स्विच बिहाइंड वाली ब्रांच को किया हुआ है. तो आप बताओ, ये चेकआउट करके देखो, अगर वो भी नहीं आ रहा इसका मतलब कि कंटेंट सेम है. चेकआउट किया. ओके, तो अहेड है, मतलब योर ब्रांच इज अहेड ऑफ ओरिजिन और मेन बाय 2 कमिट्स. तो इसकी वजह से कुछ आ रहा नहीं है क्या? मतलब नहीं, आपका फिर B11 में कंटेंट्स अपडेट ही नहीं हुए हैं बेटा. अगर अपडेट सपोज हुए देखो हैं बच्चों, मैम, मैंने किए थे. मुझे स्क्रीन शेयर करो जरा, क्योंकि मैं आप सभी बच्चों को बता दूं, यहाँ पे आउटपुट डिफ का तब नहीं आता, या तो आप के चेंजेस अपडेट नहीं हुए हैं या फिर आपका जो कंटेंट है दोनों ब्रांचेस का वो सेम है. ठीक है, तब इसमें हाँ, आउटपुट नहीं कंटेंट आता. सेम है मैम, कंटेंट हाँ, तो सेम है, मतलब कंटेंट अगर 5 सेम फाइल्स है है, दोनों में. हाँ, तो अगर कंटेंट सेम है तो फिर डिफरेंस नहीं हुआ ना, और अगर डिफरेंस ही नहीं हुआ तो इस कमांड का आउटपुट नहीं आएगा. ठीक है, दैट इज द रीजन. तो आप एक काम कर लो ना, आप इसमें डू वन थिंग, ये करो, आपने शायद ये किया नहीं है मुझे लग रहा है. एक नया फाइल जो है गिट B11 पे ऐड कर गिट दो और ऐड कमिट किया. करो. हाँ, कमिट नहीं ऐड किया दिख होगा, रहा. फिर कमिट नहीं किया होगा, फिर कमिट करो आप उसको. यू डू द कमिट प्रोसेस, कमिट लगाओगे तब जाके वो फाइनली सेव होगा. और फिर ब्रांच में आप कंपैरिजन करके देखो, इट विल बी रिफ्लेक्टेड टू यू. जल्दी से करो उसको फटाफट से. मैम वो कमिट का स्क्रीनशॉट भेजो. नोट में किया ना, वो नोट में. कमेंट ये बेटा मैनुअल भी भेजा हुआ है, कभी आप बीच में किसी में एक कमांड में रह जाते हो ना, बीच में स्टक हो जाते हो, मैनुअल इज आल्सो देयर. ठीक है, सो डोंट स्टॉप योर वर्क फॉर कि आपको कमांड दिखेगी तभी करेंगे. यू ऑल आर डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम. ठीक है, तो ऑब्वियसली कमांड इतनी जल्दी याद नहीं होती है, बट मैनुअल भी दिया हुआ है. ठीक है, अभी मैं भेज देती हूँ, बट मैनुअल इज ऑल्सो देयर. तो आप फटाफट से, जैसे आपका कोई वर्क रहता है, फटाफट से यूज द मैनुअल, वहाँ पे कमांड्स लिखी हुई हैं. ठीक है, चलिए करिए इसको, फिनिश करो इसको. मैम मुझे एक चीज में डाउट है. सो इफ वी राइट B11 dot dot main and main dot dot B1, we will get two different things. One will say deleted and one will say new file or something like that, based on which one is ahead. So I'm getting confused in like which one should we be keeping it first. Like मेरे वाले में if I did B11 dot 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 main and I'm getting deleted. So उसका मतलब है कि B11 is ahead, or how do you interpret that? सी,
when I am using b11 ... ठीक है, this is signifying कि भाई जो अहेड ब्रांच है, दिस इज बी, क्योंकि अहेड ब्रांच b11 ही है। डबल नोटेशन जो है, पहली बात तो इसमें 3 डॉट्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड, बट 3 डॉट्स से डिफरेंस नहीं आता है। 3 डॉट्स से हम सिर्फ जो हेड ऑफ द ब्रांचेस होता है ना, वो कंपेयर करते हैं। तो वी डोंट वांट टू कंपेयर द लेटेस्ट चेंज, इस वजह से हमने ओवरऑल पूरा ब्रांच का कंपैरिजन किया है। ठीक है, सो 2 डॉट्स आर यूज्ड फॉर एग्जैक्ट कंपैरिजन। 2 डॉट्स दे आर इक्वलेंट टू जो आपका इक्वल टू ऑपरेटर होता है। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट थिंग इज व्हेन वी आर यूजिंग ओवर हियर 2 डॉट्स, अगर आप b11 पहले लिखते हो, दोनों चीजें एक ही चीज सिग्निफाई कर रही हैं कि b11 इज अहेड, क्योंकि इफ यू सी ओवर हियर देयर इज अ डिफरेंस दैट b11 जो आपका फाइल था, फर्स्ट चेंज वाज देयर कि b11.txt, देयर अनदर वाज t3.txt। ठीक है, b11 और मेन में 2 वेरिएशंस हैं, 2 फाइल्स की वेरिएशंस हैं। वन इज पहली टेक्स्ट फाइल, देन अदर वन इज दूसरा वाला टेक्स्ट फाइल। पहली चीज तो ये है, मतलब अगर हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे आप स्मॉलर नंबर माइनस बिगर नंबर करते तब भी वो आंसर आता है पर नेगेटिव साइन में आता है, बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर करते तब भी आंसर आता है बट वो पॉजिटिव साइन में आता है। तो दोनों का आउटपुट बिल्कुल करेक्ट है, आउटपुट ऑफ बोथ द स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। ये डिफरेंस तो दोनों फाइल्स का है ही है। अब द नेक्स्ट थिंग इज कि यहाँ पे इट्स रिटन ओवर हियर डिलीटेड फाइल मोड, और यहाँ पे इट इज रिटन ओवर हियर न्यू फाइल मोड। व्हेन वी आर कंपेयरिंग मेन विद रिस्पेक्ट टू b11, तो b11 में नई फाइल्स जो हैं, वो दो फाइल्स का डिफरेंस था, वो b11 के विद रिस्पेक्ट टू दिख रहा है, बिकॉज न्यू फाइल वाज इंसर्टेड ऑन b11। पहली चीज मैं इसकी बात कर रही हूँ। सेकेंड, व्हेन आई वाज कंपेयरिंग b11 विद रिस्पेक्ट टू मेन, तो मेन में तो वो दोनों फाइल एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। मेन में दैट फाइल इज इन द डिलीशन मोड, एग्जिस्टेंट ही नहीं है, क्योंकि इसमें जो कीवर्ड्स हैं वो या तो डिलीटेड है या न्यू है, इंसर्शन डिलीशन के विद रिस्पेक्ट टू। ऑलराइट, सो ओवर हियर आई एम कंपेयरिंग b11 विद रिस्पेक्ट टू मेन। अगर पहले b11 लिख रही हूँ तो मेन में ऑब्वियसली जो आपका फाइल नहीं है वो डिलीटेड दिखा रहा है। अगर मैं मेन b11 के विद रिस्पेक्ट टू कंपेयर कर रही हूँ तब भी वो यही दिखा रहा है, न्यू फाइल, बट वो इंसर्टेड मोड में है। तो न्यू फाइल जिसमें होगा ऑब्वियसली उसमें इंसर्शन मोड है, ऑब्वियसली उसमें कमिट्स ज्यादा है, या फिर नंबर ऑफ फाइल्स आर अहेड ओवर देयर। ओके, ठीक है, नाउ ठीक है, क्लियर है सब स्टूडेंट्स को? व्हाट वी हैव टू डू, ये तो डिफ हो गया, डिफरेंस बिटवीन ब्रांचेस। अभी b11 ये कौन सी ब्रांच है? ये लोकल की ब्रांच है, लोकल ब्रांच। ठीक है, हाउ टू पब्लिश लोकल ब्रांच रिमोट, कैसे पब्लिश करनी है लोकल ब्रांच ऑन रिमोट। और एक और ब्रांच थी जो रिमोट पे थी, दैट वाज b1। रिमोट पे जो ब्रांच थी मेरे पास, मेरे इस पे b1 नेम है, यू चेक योर साइड आपने क्या नेम रखा हुआ है। दिस वाज रिमोट ब्रांच। ऑलराइट, now how to publish remote branch on local? Let's resolve these two things. ठीक है, b11 branch is a local branch, b11 branch is a local branch. This branch is not there on the GitHub, ये GitHub पे branch नहीं है। All right,
इफ आई वांट कि भाई आई वांट टू पब्लिश दिस ब्रांच ऑन द गिटहब एज वेल, मुझे एक ब्रांच गिटहब पे भी चाहिए, ऑलराइट, सो हाउ वुड आई डू इट? आई विल यूज अ पुश ऑपरेशन गेट। अच्छा, उससे पहले जो है जो मेन आपका, क्योंकि वी हैव डन सम चेंजेस, ठीक है, तो काइंडली यूज पुश एंड पुल ऑपरेशन करने से पहले ना, ये जो आपका मेन ब्रांच पे आप जाइए, चेकआउट मेन, ठीक है, एंड यूज अ पुश ऑपरेशन। इसको थोड़ा सिंक कर लेते हैं, देन आई विल गो टू दिस पार्ट। ठीक है, अगर वहां पहले चेंजेस कर रखे हैं तो प्लीज यूज अ पुल कमांड, अदरवाइज वो फैटल एरर देगा। B11 was overwritten by B11 test.txt। जस्ट चेक करना ये आपका एरर आ रहा है क्या? अगर आ रहा है तो फिर इसको मेल मर्ज करके देखना पड़ेगा। नहीं आ रहा है। ठीक है, बिकॉज मैंने एक एक्स्ट्रा फाइल बनाई थी, इस वजह से मेरे उस पे आ रहा है, तो आई हैव टू यूज मर्ज करके यूज करना पड़ेगा मुझे। अगर नहीं आ रहा तो आप पुश और पुल कर लो, ठीक है, यू कैन यूज पुश एंड पुल। तो मैम it should say that the branch is up to date. हम वो ट्राई कर रहे हैं। यस यस, इट शुड से लाइक दिस। आप लोगों के एंड पे द थिंग इज, यहाँ पे द मैसेज शुड कम कि एवरीथिंग इज अप टू डेट आफ्टर पुश एंड पुल। मेरे वाले एंड पे क्या हो रहा है, B11 टेस्ट वाली फाइल है, मैंने ऊपर भी एडिट की हुई है, इस वजह से दिस इज गिविंग मी दिस काइंड ऑफ एरर। अगर आपका हो रहा है, ठीक है, सो व्हाट यू कैन डू, you can use the पार्ट जहाँ पे हमें पब्लिश करना है, गेट पुश ओरिजिन B11 करके पब्लिश कर सकते हो, ठीक है। चेक की यहाँ पे मेल मर्ज वाला जो है, दैट पार्ट इज लेफ्ट ओवर हेयर, मेरे वाले केस में रीबेसिंग करना पड़ेगा, ठीक है। इफ एट योर साइड यू आर एबल टू डू, तो डू वन थिंग, गेट पुश ओरिजिन
B11. Use this command and check whether that specific branch is published on the main, आपका जो remote folder है उस पे आ गया है वो branch. चेक करोगे, all of you will be completing this. Git push origin B11. अब इसमें एक्टिव ब्रांच B11 होना जरूरी है क्या? Yes. अदरवाइज समटाइम्स वो फेल कर देता है अपडेट्स पुश करने में. So use this command. For this particular part, right? And B1 जो remote branch है उसको if you want to get, तो उसके लिए I'll write the next command. पहले इसको complete करो. GitHub को refresh कर लेना. Refresh the GitHub, तभी आपको जो branch है ना, now see the number of branches are 3. Why? Because 2 branches तो already उसमें थी. ठीक है. One branch B11 was published from the local towards the remote. तो अगर कोई local branch है, remote पे existent नहीं है, पहली बार जब आपने उसको वहां पे create करना है, publish करना है, तो you have to use the push operation. वैसे push operation is used to update the changes. ठीक है, बट पब्लिश करने के लिए भी ब्रांचेस को, GitHub पे ब्रांचेस को पब्लिश करने के लिए भी we use the push operation. In order to publish a new branch, newly created branch from the local towards the remote, we use the push operation. So ma'am, at this stage, we don't want to compare and pull request, right? We just have a new branch. Compare and pull request तो always आएगा ना, क्योंकि this B11 में कंटेंट ज़्यादा है in comparison to the main, ठीक है ना. So वो always रहेगा. Comparison आप किससे भी कर सकते हैं. Like अगर मैं यहाँ जाती हूँ, I can compare something like this. यहाँ देखो, B11 I know it is ahead. So if I'm willing to merge B11 into the main remote पे, GitHub पे, तो ठीक है, pull request raise करूँगी. If I choose a branch B1, अगर मैं ये बदल दूँ, B1 पे चेंज कर दूँ, तब भी मुझे पता है B11 के कंटेंट ज़्यादा हैं, कमिट ज़्यादा हैं in comparison to B1. Since B11 is ahead of B1, I would be automatically able to merge it. How? Remote पे merging कैसे होती है? With the help of the pull request. But अगर मैं इसको change कर दूँ, मतलब B11 यहाँ कर दूँ और main जो है यहाँ कर दूँ, ठीक है. अगर इस पे कंटेंट कुछ एक ज़्यादा होगा, बिहाइंड ऐसा होता है ना कि जो कुछ कमिट्स जो होते हैं, कुछ फाइल्स आप दे चुके हो, कुछ फाइल्स उसमें आपने बाद में अपडेट करी, ठीक है, देन ऑल्सो इट विल बी एबल टू मर्ज. लेकिन मर्जिंग में जो फाइल्स मेन में हैं बट B11 में नहीं है, वही फाइल्स कॉपी होंगी. बट अगर सपोज आई हैव समथिंग जो ऑलरेडी यहाँ पे B1 पे एग्जिस्टेंट नहीं है, B11 पे है, तो उसका कोई शफलिंग नहीं होगा. इस केस में क्योंकि मेन और B1 में हम पहले ही GitHub पे जाके कुछ और चीज़ें भी वो कर चुके, अपडेट कर चुके, इसलिए मेन B1 में भी नए कमिट्स हैं, B11 में भी नए कमिट्स हैं. तो जो नए नए हैं वो सारे ट्रांसपोर्ट होंगे, बाकी विल रिमेन द सेम. वो भी डायरेक्शन वाइज, यहाँ पे B1 का टुवर्ड्स B11. Is it fair to think of this like how we learned set differences
A minus B and B minus A are different, but they Right. should be there. Right. Right. Okay, ma'am. Thank you. ठीक है, pull request वहाँ आएगा. That's up to you whether you want to merge or not. Merge is optional actually. All right. ठीक है, clear it is. अच्छा, एक चीज इसमें आप थोड़ा सा चेंज करेंगे. यहाँ पे हाउ टू पब्लिश बी, हाउ टू गेट या हाउ टू फेच B1 विच इज अ रिमोट ब्रांच. गिटहब से अगर कोई ब्रांच है हमें लोकल में चाहिए तो हाउ वी विल डू. ठीक है, लेट्स सी. राइट ऑन द कमांड ऑन दिस B1. ठीक है, गिटहब पे लिखो, गिट पे लिखो ये कमांड. Should we be in main when we are typing that? Yes. Now, if you check over here, B1 is the remote branch, जो कि local में it is not there. लोकल में अगर हम चेक करेंगे ना, लोकल में we just have main and B11. ये remote की branch है. This is the branch on the remote. नेम चेक करोगे आप, अपने एंड पे चेक करो आपके ब्रांच का क्या नाम है जो सिर्फ रिमोट ब्रांच है, लोकल पे नहीं है. ऑलराइट, सो इन माय केस इट इज B1. फर्स्टली आई विल फेच द ब्रांच. उसी के साथ यू हैव टू यूज चेकआउट कमांड एज वेल. अगर आप चेकआउट कमांड यूज नहीं करोगे तो ये ब्रांच फेच तो हो जाती है लेकिन कैश मेमोरी में चले जाती है. ऑलराइट, सो यू हैव टू यूज फेच. Fetch will bring the branch, remote branch, towards the local. And simultaneously उस branch पे अगर switch करोगे तभी वो branch आपको memory में दिखाई देगी, otherwise वो cache memory में चले जाएगी.
तो fetch and checkout should be used one after another. You have to give the name of the branch. Fetch का purpose है that it has the ability to get the branch from the remote towards the local. So fetch command will be used. ठीक है? Fetch command is generally utilized with the get branch command. क्योंकि पुल तो आपके चेंजेस को कॉपी कर देता है, फेच कभी चेंजेस को कॉपी नहीं करता है, वो आपके ब्रांचेस को डाउनलोड कर सकता है। मैम ये हम किसी भी ब्रांच में कर सकते हैं, लाइक एक्टिव ब्रांच, एनी ऑफ द ब्रांच कुड बी द एक्टिव ब्रांच, एनी ऑफ द ब्रांच कुड बी द एक्टिव ब्रांच। गेट ब्रांच से आप उसको चेक कर लो whether that branch is fetched or not. Origin means remote and you have to give the name of that specific branch. और checkout उसके simultaneously बाद में लगाना है, one after another. ये नहीं कि checkout लगाया नहीं है, checkout नहीं लगाओगे तो वो branch नहीं आएगी. When you use get branch also, वो branch आपको local में दिखाई देगी. Complete this one. करिए इसको बेटा complete. Ma'am, if we want to rename a branch, do we have any operations? Yeah, rename करने का there is an operation, ठीक है, get branch, ठीक है, and the name of the branch, पुराना branch का नाम और नई branch का नाम, ठीक है. You can rename a branch कैसे, get branch -m and new name. Suppose अभी I will not change the name, अभी जब नेक्स्ट वाले सेशन में इनिट से करेंगे तब मास्टर का नाम मेन पे चेंज करेंगे. आई जस्ट राइट द कमांड बिकॉज यू आस्क्ड, सो आई विल राइट व्हाट इज द कमांड. द कमांड इज गेट, मतलब लोकल पे अगर आपको कोई काम करना है तो डेफिनेटली कमांड से करोगे, ठीक है. -m न्यू नेम लिख देती हूँ मैं, ठीक है. सपोज मैं B1 पे ही हूँ एंड आई वांट टू रीनेम B1 इनटू सम अनदर नेम. तो इस ब्रांच पे करंटली जिस ब्रांच पे हो आप उस ब्रांच का नेम चेंज करना चाहते हो, ठीक है. सो दिस इज हाउ यू विल डू. ओके मैम. और रिमोट पे तो आपको पता ही है कि व्हेन यू वांट टू रीनेम द ब्रांचेस ऑन द रिमोट तो फिर यू हैव टू यूज द डायरेक्टली, या तो वहां से यूज कर, बट अगर लोकल से यूज करना चाह रहे हो तो फिर आपको पुराना ब्रांच पहले डिलीट करना पड़ेगा, फिर अपस्ट्रीम पे नया ब्रांच रीसेट करना पड़ेगा. क्योंकि अगर आप ऐसे उसको पुश करोगे ना फिर कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा. तो जनरली एडवाइजेबल होता है जब रीनेम करना है, या तो फिर आप ब्रांच पहले पुराने खत्म करो गिटहब पे, फिर नई ब्रांच को पोस्ट करो. मतलब सपोज मुझे इसका नेम बदलना है, इस वजह से मैंने ये ऑपरेशन अभी परफॉर्म नहीं किया बिकॉज डिलीशन मैंने अभी सिखाया नहीं आपको. इफ यू वांट टू रीनेम B1, ठीक है, ठीक है, यहाँ से तो रीनेम हो जाएगी इस कमांड से, बट अब रिमोट का क्या बनेगा. तो रिमोट पे ये पुराना वाला ब्रांच B1 डिलीट करो, ख़त्म हो गया, और जो नया नाम का ब्रांच है उसको जाके पब्लिश करो. फिर डिलीशन अभी बताया नहीं इसलिए आई कैन नॉट गो अहेड विद दिस, क्योंकि डिलीशन ऑफ द ब्रांचेस लोकल में रिमोट में कैसे करनी है दैट आई हैव टू टीच यू, है ना. अभी मैंने कराया नहीं इस वजह से, क्योंकि लोकल और रिमोट पे नाम सेम होना चाहिए ना. अगर आप इस पे नाम बदल दोगे ओके फाइन, बट रिमोट पे भी वो नेम चेंज होना चाहिए. तो पुराने नाम वाला ब्रांच डिलीट करो, नए वाले को पब्लिश करो. नया वाला कैसे पब्लिश होगा ये हमने अभी सीखा ही है, वी हैव लर्नड आल्सो.
अदरवाइज फिर अपस्ट्रीम का भी है, अनसेट करके भी एक वो है, बट समटाइम्स इट रेजेस द कॉन्फ्लिक्ट। तो बेटर वे कि आप डिलीट कर दो उसको, पुराने वाले को। अपस्ट्रीम नेमिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको पब्लिश कर लो आप, ब्रांच को फेच कर लो। ऑल ऑफ यू प्लीज फेच द ब्रांच। और कोई डाउट है तो आके पूछो। अंडू की मैंने आपको कल कमांड्स बताई थी। रिवर्ट, रीसेट, एक आरएम कमांड वाज लेफ्ट, ठीक है, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। पहले आप ये कर लो। मैम एक क्वेश्चन था। नॉर्मली जब हम लोग ब्रांच बोलते हैं सो विजुअली हायरार्किक स्ट्रक्चर याद रहता है, बट आर दीज ब्रांचेस actually in any hierarchical structure, or are they just separate entities from one another? Like main hai and then there is all the branches. See, as such we cannot say there is a hierarchical model in it, but yes, at the time of creation a hierarchy is followed कि जो base branch है उसकी files will be passed to the subsequent branch, but after the creation they are separate entities. Whatever you are doing B1 पे, उसके प्रायर जो ऊपर पेरेंट है उस पर कोई रिफ्लेक्ट नहीं होगा, या उससे कुछ आपने कोई आगे नोट्स बनाई हैं उस पर कुछ रिफ्लेक्ट नहीं होगा, फिर वो सेपरेट एंटिटीज हो जाती हैं, बट दे आर द पार्ट ऑफ दैट सिंगल प्रोजेक्ट। सिंगल प्रोजेक्ट में एक ब्लॉक मॉड्यूल्स बने हुए हैं, ठीक है, ऑल टुगेदर उसमें कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन है बट सेपरेट ब्लॉक्स हैं। So it doesn't matter how many times we are deriving one branch from the other. At the end, they're all just separate. Okay. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें बेटा किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। If there is any doubt, you can ask. One more thing I'll teach before I'll stop. ठीक है, गिटार मुझे बताना है। somehow कल गिटार हमारा रह गया था, so I was just checking the text note text यहाँ पे, तो RM मैंने बताया नहीं हुआ, तो I'll complete RM also. undo के operations we did yesterday ना, undo के operations पर reset, revert, इनके आगे भी देखो, अगर आप गिट का मैनुअल ओपन करते हो ना, बहुत इसमें अराउंड 100+ कमांड्स आर देयर, ठीक है, बट आपको फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अ व्यू दैट हाउ वर्जन कंट्रोल सिस्टम वर्क्स एंड हाउ वी आर यूजिंग दिस टूल फॉर प्रोजेक्ट एंड हाउ द प्रोजेक्ट इज बेसिकली डिविजन हिस्ट्री ऑफ द प्रोजेक्ट इज मैनेज्ड ऑन द गिटहब, उस पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। तो रीसेट का भी अगर मैं बात करूं या रिवर्ट की भी बात करूं, इसमें भी मल्टीपल फ्लैग्स आर देयर। जब वी टीच इन द डैक बैच, तो डेवलपर लेवल पे हम इसको कैश मेमोरी में कैसे रिट्रीव करना है, या कैसे अनस्टैक करके स्टैश में डालना है, टेम्परेरी रजिस्टर में इनके स्टोरेज सेव करने, वो सब चीज़ें भी टीच। बट एट दिस पॉइंट आपके उसमें करिकुलम में इट्स नॉट देयर, वो रिक्वायरमेंट आपको आगे होगी भी नहीं। इतना पॉइंट ऑफ वर्किंग इज सफिशिएंट वेयर द स्टूडेंट इज एबल टू बेसिकली work with the project remotely using a version control tool, ठीक है, उससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती भी नहीं है एंड नॉट रिक्वायर्ड एज वेल, ठीक है। बट ये यहाँ तक नहीं है, इसमें बहुत चीज़ें इलेबोरेटिव है ये, बहुत ज़्यादा। गिट अगर आप इसका मैनुअल शीट खोलोगे ना इसकी ऑफिशियल साइट पे जाके, इट्स वेरी इलेबोरेटिव, उतना रिक्वायर्ड नहीं है, उतना करना भी नहीं है, ठीक है। तो आई वाज जस्ट टेलिंग कि भाई ऐसा मत सोचो कि ये आज जो खत्म होगा बस इतना ही गिट है, इट्स वेरी इलेबोरेटिव। गिटहब पे भी जाओगे ना, इस पर काफ़ी मार्केट प्लेस टूल्स आपको मिल जाएंगे जो आप बाकी जो डेवलपर टूल्स होते हैं उनसे हम कनेक्ट कर सकते हैं, टेस्टिंग के लिए कनेक्ट कर सकते हैं, कोड रिव्यू के लिए कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जिसमें हम सीमलेसली कर सकते हैं, पाइपलाइनिंग बना सकते हैं। आपके पॉइंट ऑफ व्यू पे इतना रिक्वायर्ड नहीं है, बट हाँ दिस मच नॉलेज
शुड बी देयर एज एन AI स्टूडेंट, इतना नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। चलिए, सो रीसेट किया था, रिवर्ट किया था, एक RM रह गया। यू ऑल नो कि RM जब हम डॉस कमांड्स में यूज करते हैं, इट मीन्स रिमूव। तो हमारे लोकल से फाइल रिमूव हो जाती है, ठीक है। आई एम टॉकिंग ऑफ द गिट फाइल्स। एक तरीका आई टोल्ड यू कि भाई अगर यू आर यूजिंग गिट, आई वॉन्ट टू रिमूव वन ऑफ द फाइल, तो व्हाट यू डू इज कि आप यहाँ से डिलीट करते हो या RM लिख के डिलीट करते हो, फिर उसको ऐड करते हो, फिर कमिट करते हो कि चेंजेस तो करें। बट what if I have something like this, इसका फायदा क्या है, what is the advantage? ये जो है git rm command, this will actually remove the file from the git repository as well as ये जो आपको वर्किंग ट्री दिखाई दे रहा है, लोकल से भी फाइल डिलीट कर देगा और यहाँ से भी डिलीट कर देगा। मतलब एक फाइल, यू हैव वन ऑफ द फाइल विच इज एक्चुअली सेव्ड ऑन द गिट, ऐड कमिट करके गिट पे सेव किया हुआ है, ठीक है। नाउ यू वांट टू डिलीट दैट फाइल, so if you want to delete that file, I will use rm operation, git rm and the file name, and you will check that the file will be deleted from the local का जो लोकल स्पेस है, एज वेल एज जो गिट का वर्किंग ट्री है वहां से भी इंडिविजुअली वो फाइल डिलीट हो जाएगी। सो टू रिमूव द ट्रैक्ड फाइल्स फ्रॉम द गिट इंडेक्स वी यूज गिट rm। rm नहीं, rm तो लोकल से हटाएगा, गिट rm। वर्जन कंट्रोल सिस्टम से हटाना है ना उसको, VCS से हटाना है, तो गिट rm यू हैव टू यूज, ठीक है। सो लेट्स चेक दिस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो फाइल नेम था remote.txt, यहाँ से completely चला गया है। मतलब अगर मैं इसमें स्टेटस भी चेक कर रही हूँ ना, ठीक है, तो यहाँ ये आ रहा है कि ये फाइल चला गया है फ्रॉम द गिट रिपोजिटरी, ठीक है, राइट। सो इसको कंप्लीट करो, गिट rm यूज करो, यूज गिट rm। File has been deleted, but when we check the status, we can track the file staging area. It means staging area में अभी भी वो फाइल अवेलेबल है। ऐड कमिट करके फिर वापस जाओगे तो स्टेजिंग एरिया में फिर सेव हो जाएगी, ठीक है। सो हाउ टू डिलीट, रिवर्ट नहीं बोला, रीसेट नहीं बोला, हाउ टू डिलीट अ फाइल दैट इज सेव्ड ऑन द गिट ट्रैकिंग सिस्टम या गिट रिपोजिटरी या गिट वर्किंग ट्री। RM जो खाली आप RM यूज करते हो ना, RM एंड फाइल नेम, ये तब बेनिफिशियल है अगर वो फाइल गिट पे सेव ही नहीं कर रखी। डॉस का कमांड है ना, बेसिक कमांड, RM मतलब रिमूव। RM फाइल नेम जब आप CMD पे लिखते हो तो इट सिंपली रिमूव्स द फाइल। बट अगर कोई फाइल गिट पे ही सेव हो गई है, उसको डिलीट करना है, सो देयर इज अनदर वे आउट ऑफ इट, to use the git rm command, the repository से it will delete। ls करके देखोगे, इट्स नॉट देयर, फाइल है ही नहीं है।
मैम ये अभी भी कमिट नहीं हुआ है राइट, ये जो हमने डिलीट किया git rm से। सी if we talk of the commit thing, तो इसमें ये file has been removed from the version control system, so the repository and the status are shown as deleted. इस वजह से ये deleted दिखा रहा है उसका। आप when you check the thing ना, इसका commit create करने की जरूरत नहीं है. It will be just showing you कि that particular repository और उसका status deleted है इस तरीके से. तो इसे we can't use restore and get it back? नहीं, if you want to restore, अगर stage out करोगे तब restore करोगे ना. Restore is a command. Suppose you have already used the file, आगे staging area तक पहुंचा दी है, उसके बाद you want to unstage something, तब restore operation is recommended. मतलब अगर suppose मैं I delete something like this, W करके quit करते हैं. .txt, ठीक है. द स्टेटस आप ये देखो, ये वाले चेंजेस जो हैं अनट्रैक्ड हैं या अनमॉडिफाइड हैं, बल्कि ऊपर जब हम कर रहे थे तो वो नोटिफाई कर रहा था कि द डिलीशन हैज बीन डन फ्रॉम द रिपोजिटरी एंड द स्टेटस इज दैट इज व्हाई रिफ्लेक्टिंग एज डिलीटेड. आरएम कमांड यूज करते तो फिर इट्स स्टिल वेटिंग फॉर यू. अब इसको ऐड भी करना पड़ेगा, कमिट भी करना पड़ेगा. But if you use rm command, then it will not permanently delete the file from the git. It can be tracked in the staging area. Okay. Alright. Right? ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स. सो अभी इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, यहीं पे रुकेंगे. ठीक है. Now what is the thing that we have to cover in the next session? अभी in the afternoon we will cover, अभी local merging नहीं हुआ है हमारा. Local merge, this is left, plus merge conflicts क्या होते हैं, ठीक है, वो देखेंगे. एंड फॉर्क ऑपरेशन वी विल चेक. ठीक है. स्टैश ऑपरेशन चेक करेंगे. बस इतने ऑपरेशन थी. प्लस ये वर्क वी विल अगेन स्टार्ट. अभी हमने गिट क्लोन से पढ़ा था, अब हम गिट इनिट से वी विल स्टडी. ठीक है. सो गिट इनिट इज स्टिल लेफ्ट. हालांकि सेम ही चीज़ रेप्लिकेट करनी है, बट हाउ टू यूज और हाउ टू इनिशियलाइज एनी लोकल फोल्डर विद द इनिशियलाइजेशन ऑफ द गिट local directory. ठीक है. These are the things that will be covered in the next half of the session, and then we can start with the assignment. Then we are good to start with the assignment. ठीक है. So we will stop over here. इसके beyond we will not go. And कुछ concepts head और index, कुछ terms है, एक आधे terms जो PPT में दी हुई हैं, that will make you. So कोई डाउट है बेटा तो पूछ लो, अदरवाइज आई विल टेक द अटेंडेंस ऑफ द क्लास. ठीक है. If there is no doubt, then I will take the attendance of the class. Please respond to the attendance. Mayur. Present, ma'am. Aryan. Mahavir Singh. Present. Okay. Yash. Present, ma'am. Nankar Mansi.
विकास, प्रेजेंट मैम। आशीष, प्रेजेंट मैम। लिखराज, प्रेजेंट मैम। श्रेष, धीरे, साई निशांत, प्रेजेंट मैम। ऑलराइट, रुद्रांशु, राजभोग, प्रेजेंट रुद्रांशु इज प्रेजेंट, राजभोग, प्रेजेंट। अच्छा राजभोग आपने आईएसओ पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया है क्या? यू हैवंट रजिस्टर्ड मैंने ऑन हो द गया आईएसओ? मैम, अच्छा डन है, हो गया। चलो हाँ, ठीक यस ठीक यस मैम। ठीक है, ओके फाइन गुड। निशांत, साई निशांत, हैव यू रजिस्टर्ड ऑन द आईएसओ पोर्टल? Not yet, ma'am. Actually, I'm trying. प्लीज देन डू वन थिंग, ठीक है, यू कॉन्टैक्ट निशा मैम, ठीक है, सो यू कैन गिव हर योर डिटेल्स इफ यू आर अनेबल टू कनेक्ट विद द VPN ना, so I'll ask her कि she would register your details on the ISO portal. उसके बाद लेकिन student profile you have to fill, है ना? What we'll do, एक बार registration करवा देते हैं, that will be easier for you as well, ठीक है? You send your photograph, passport size photograph and your email ID, phone number, ठीक है? Your complete name, है ना? Education details. नहीं नहीं, To एजुकेशनल Nisha, ma'am. डिटेल्स नहीं, एजुकेशनल डिटेल्स तो स्टूडेंट प्रोफाइल में यू हैव टू फिल, है ना, बट समहाउ लेट्स Okay. फर्स्ट रजिस्टर योरसेल्फ ना, है ना, Okay, विल ma'am. रजिस्टर यू ऑल, ठीक है, तो आप जस्ट कॉन्टैक्ट निशा मैम एट 2:15, है ना, यू कैन कॉल हर एंड यू कैन से कि यू आर अनएबल टू लॉग इन या कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, सो शी वुड देन रजिस्टर यू एज अ स्टूडेंट ऑन द ISO पोर्टल, ठीक है ना, फिर उसके बाद यू कैन फिल द स्टूडेंट डिटेल्स, Okay, ma'am. I'll do it. ठीक है? मैम यस मैम मैं बोल रहा था, जैसे मैं एक्चुअली क्या मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसके लिए भी निश्चित। हाँ जी रुद्रांशु स्पीक अप, रुद्रांशु आवाज नहीं आ रही आपकी। यस मैम। बताओ। मैम मैं बोल रहा था मेरी मतलब मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ स्टूडेंट, तो लॉगिन होता है तो VPN का जो IP है वो चेंज कर लो, चेंज द VPN IP, दूसरे IP पे ट्राई करके देख लो अगर आप फिर तो निशा मैम से बात करूँ। हाँ बात कर लो, अगर देखो VPN रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रहा है ना कि कनेक्शन नहीं स्टैब्लिश हो रहा, तो IP चेंज करके देख लो। स्टूडेंट डेटा तो आप लोगों को ही फिल करना पड़ेगा, हाँ रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा बिकॉज हमें ऑथेंटिकेट करने हैं स्टूडेंट्स, इस वजह से वो वेटिंग की सब तक, जब तक पूरी क्लास ना करे तब तक वी कैन नॉट ऑथेंटिकेट ना, तो अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ तो फिर निशा मैम को बता दो, अगर रजिस्ट्रेशन हो गया स्टूडेंट डेटा फिल करना है ना, तो स्टूडेंट डेटा आप 1 वीक के विद इन फिल कर दो, IP चेंज कर लो आप, या फिर नितिन का नंबर दिया हुआ मैंने, इज द पर्सन जो कि डेटा सेंटर हैंडल करता है, ठीक है? हाँ ओके, देन आनंद आर प्रेजेंट मैम। ओके, चेतन, अवनी प्रेजेंट मैम। अवनी, प्रेजेंट मैम। अरुणा, प्रेजेंट मैम। गणेश, यस मैम। पूर्विका, प्रेजेंट मैम। पायल, प्रेजेंट मैम। रवि, प्रेजेंट मैम। मानसी पाटिल, आनंद कुमार यादव, ठीक है, सो अटेंडेंस आई हैव डाउन